अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे है साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। आर्मी चीफ MM नरवानियन आज सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वोनमुत भारत चीन सरहदी कशीदगी खत्म करने हवाले फौजी सतह पे कोशिश जारी ये जन तमो जम्मू हंदन सरहदन तो वादी हवाले कत करान वोन मिलिटेंसी खत्म करने हवाले कार्रवाई अमल मज अन्न जन सरहदन पे फौज मजीद चौकस करने आमुत। The 14th round of the Corps Commander level talks are underway, and I am hopeful that you shall see further development in the days ahead. But while we say that, while there has been partial disengagement, the threat has by no means reduced, and the force levels are more or less the same, and from our side they have been enhanced. The threat assessment and internal deliberations that we have carried out from time to time have resulted in some reorganization and realignment of forces in keeping with the Army's mandate of ensuring our territorial integrity. And this also caters for the major augmentation that has taken place in the PLA's forces and their infrastructure. While we will continue to deal with the PLA in a firm and resolute manner, necessary safeguards are in place to take care of any contingency. Upgradation and development of infrastructure along the northern borders is also being carried out in a holistic and comprehensive manner. This includes roads, tunnels, all-weather connectivity, strategic railway lines, additional bridges across the Brahmaputra, storage facilities for fuel, oil, lubricants, supplies. So it is an all-round holistic development. Side by side, major efforts have also been undertaken to see what all dual-use infrastructure is there which can be made use of, which is available in the civil domain. On the western front, along the line of control, after a heightened situation for a long period, the DGMO's understanding in February last year was aimed at achieving a mutually beneficial and sustainable peace. Resultantly, the situation has seen a marked improvement. But notwithstanding that, there is an increase in concentration of terrorists in various launch pads, and there have been repeated attempts at infiltration across the LC. And needless to say, this once again exposes the nefarious designs of our western neighbor. But we on our part have resolved to show zero tolerance for terror, and we have committed ourselves to extract dire costs should that be forced upon us. In Jammu and Kashmir, the whole of government approach has led to a progressive improvement in the security situation. There have been efforts to give an indigenous hue to terrorism by setting up a facade of proxy terror tanzeems, but these attempts have failed miserably and have not got any public support. Various other inimical elements re-energized their attempts at disrupting peace in the valley, mainly by trying to target minorities, non-locals, migrant labor, and so on. However, this also has not succeeded very much, and we have been able to counter these challenges also. सयाती मुकाम गुलमर्ग मज ये वंद कालस दौरान प्रेथ वरी वंद खेलन हुंद सांस करने यथ मज मुकामी खिलाड़ियों अलाव गैर मुकामी खिलाड़ियों हुंद बोड़ तादाद यमन खेलन मज हिस्स तत यम वरिय वंद खेलन मज कर्लिंग खेल शामिल करने आमत यथ दौरान आज अत खेल सत वाबस्त खिलाड़ियों तो जिम्मेदारों तरफ वन आव जो प्रोग्रामों सत नौजवान खिलाड़ियों ब्रोह पकनस मज सठई आसानी सपदन। ये गेम यहाँ पे इंट्रोड्यूस पहली बार हुई है, पर पूरे विश्व भर में तो ये गेम बहुत पुराना गेम है और विंटर ओलंपिक स्पोर्ट का ये सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग गेम है। और इस गेम को
हम लोगों ने सबने यहाँ पे इंडिया में रिकॉग्नाइज किया है. हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इसमें बहुत मेहनत करी है. JKTDC का भी यहाँ पे कोलैबोरेशन रहा है. उनके बिना संभव नहीं था ये गेम, और उन लोगों ने बहुत सहयोग किया है. उनके सब लोगों ने हम लोगों को हर वक्त पे सहयोग किया है, बच्चों को यहाँ तक पहुँचने में और यहाँ पे ठहरने में, और इंक्लूडिंग यहाँ पे गेम को कंडक्ट करने के लिए बहुत किया है. और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ ये पहली जो हम लोगों ने शुरुआत करी है सब लोगों ने मिल करके, ये बहुत आगे तक जाएगी और इवेंचुअली पक्का ये एक ओलंपिक मेडल में तब्दील होगी. This is actually curling, which is winter sports game, and we are so happy that this game is there in the Olympics winter game, and we did not expect this game will be in our country, and we are so happy that curling game was introduced in India too, and the Jammu and Kashmir Association took the responsibility, and they're doing amazing work and very good work regarding this. And about the sports, this sport is very amazing sports. It's not about individuality, it's about the team sport. We all team work together. It's all about the unity, it's all about the teamwork, and it's not just about the physical thing, it's all about the mental and physical work together. We need to focus, concentrate at the same time in the sports, and we feel so happy for this sport. Thank you. अभी ये कर्लिंग का जो पहली चैंपियनशिप है, अभी जो JNK टीम भी अभी फाइनल पहुंची है आंध्र प्रदेश के साथ में, जो उसकी अध्यक्ष हैं कर्लिंग की रश्मि दीदी, वो इसके अध्यक्ष हैं, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, और पूरे यहाँ के जितने भी तमाम लोग हैं, जो अधिकारी हैं, सबने बड़ा अच्छा सहयोग किया है. मेरा मानना है कि ये जो विंटर ओलंपिक है, ये बहुत एक अच्छा मौका है कश्मीरियों के लिए भी, हिंदुस्तानियों के लिए भी विंटर ओलंपिक में अच्छा करने का. और मेरे सभी खिलाड़ियों की मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. जैसे हमने समर ओलंपिक में मेडल जीते हैं, ऐसे ही हमारे खिलाड़ी टंगडार करनास में आज महकमा हार्टिकल्चर तरफ BSF के इश्तराक से तरबियती तो जानकारी प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों BSF अहदेदारों तो मुकामी जमींदारों शिरकत कर. अत मौके पे ये लूकन बागबानी हवाले तरबियत जान फराम करना आई तक कईहन किस्मन हिंद मेव कुल बाग वालन मज बगरन आमद. ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज्यादा खुद ज्यादा लूक बागबानी कुन रागिब करने बापत इथन प्रोग्रामन हुंद सांस करने यहां. यह कत बावन लायक योदवे अत प्रोग्रामस मज हार्टिकल्चर महकमक DGM एजाज अहमद भट्ट शिरकत करन वल ताहम तिम हेलीकॉप्टरस मज तकनीकी खराबी किन अत मज शरीक सपदे. बेसिकली ये जो आज का यहाँ पर मेगा अवेयरनेस कैंप जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से करना था या उन्होंने शेड्यूल रखा था, तो ये हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमने सेलिब्रेट किया, और उसके अंदर ये जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके चलते यहाँ पर आज एक तो अवेयरनेस कैंप था, दूसरा यहाँ पर ये डिपार्टमेंट की तरफ से करीबन 20,000 के करीब प्लांट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करने थे ग्रोवर्स में. हार्टिकल्चर वाले जो ये अस्ता इतना करना भी महकमा है, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया. सो बूटे आने देते थे, फर्स्ट क्लास बूटे हर किस्म ब किस्म, और नींबू भी संतरा भी, और इंशाल्लाह इस महकमे की बहुत बड़ी असन को फायदा मिलता है, और भी अच्छे अच्छे बूटे असन उससे भेजे जुलन, और इस करना के अंदर अस्थाई पहाड़ी इलाका है, इस पे जितने बूटे असन इतना असन को फायदा मिलती है इंशाल्लाह, और अच्छा महकमा है. यपर श्रीनगर मज फ्रूट ग्रोवर्स तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान वन आव योदवे एक तरफ हुकूमत तरफ मेव सनस पोछर दिनस हवाले बड़ दाव कर तत दोम तरफ तिथ कह कदम तुलना आमुत यम किन मेव सनस सत वाबस्त लूक मुश्किलन मज हेन आय. आ रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो मोटिव है कि हमें हिंदुस्तान का ही पहनना चाहिए, हिंदुस्तान ही खाना चाहिए, इसके बरक इस वक्त इस साल और पिछले साल भी किसी हद तक हुआ था कि ईरान से जो हमारे फ्रूट हिंदुस्तान भर के मंडी में आ रहा है, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बेहद मुतासिर हो रही है. इस वक्त दिवाली तक हमारे रेट्स अच्छे रहे, क्योंकि हार्वेस्टिंग पीरियड ईरान और कश्मीर का एक जैसा है. हिंदुस्तान से कई लोग गए ईरान में, क्योंकि ईरान में सैंक्शनें लगी हैं, वहां
तिजारत नहीं हो पाती है बाकी ममालिक के साथ, वहाँ का सेब बहुत सस्ता है वहाँ पर। जो हमारे पास इतलात हैं करीबन 15 से 20 रुपए किलो वहाँ हिंदुस्तानी करेंसी में बिकता है वहाँ पर। और हिंदुस्तान भर के कई लोग गए, उन्होंने वहाँ से माल खरीदा और वहाँ से स्टोरों में रखा, वहाँ के गोदामों में रखा। और जब उसने आना शुरू किया यहाँ हिंदुस्तान की मंडियों में, सबसे ज्यादा वाया बम्बई से पोर्ट पर आता है, कोचीन के पोर्ट पर आता है, चेन्नई के पोर्ट पर भी आता है। तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन की डिमांड बहुत हद तक खत्म हो गई हिंदुस्तान भर के मंडियों में। अगर गवर्नमेंट ने यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसके लिए कोशिशें की, मगर इसकी मार्केटिंग के लिए क्यों इसमें रोडे अटकाते हैं? हमें अगर अपना प्रोडक्ट अपना हमारे पास एप्पल के एक वाफिर मिकदार में मौजूद है, हम यहाँ इस वक्त प्रोडक्शन है हमारे पास, तो बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है? तो हमें ये जो हमारे बागात के मालिकान हैं, जो हमारे आर्चर्स हैं, जो इसके ट्रेड के साथ वापस हैं, वो नुकसान से दो चार होंगे और हमें ये बागात फिर काटने पड़ेंगे। लिहाजा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आपके वसानत से भी शायद आपकी आवाज ज्यादा तेज है, इस वजह से हमने आपको यहाँ तकलीफ दे दी कि आप गवर्नमेंट के आवाम तक हमारी ये बात पहुंचा दे कि अगर हमारे पास अपना फ्रूट है, अपना प्रोडक्ट है, हमें बाहर से मंगानी। जम्मू कश्मीर में पत्मो कैंचो दोहों पे कोरोना मामलन में इजाफ वुचन तक कलगमिस मज आज पुलिस तरफ लूकन मज मास्क बागरन हवाले मुहिम शुरू करना आमज, यिल जन मुकामी लूको तरफ पुलिस शुक्रिया अदा करान वन आव ज पुलिस तरफ लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने हवाले यह कदम तुलना आमुत। यह शुक्रगुजार DSP हेड क्वार्टर सिंह SSP कुलगाम सिंह कि यमो चलो आज ड्राइव यथ मो मास्क कर इशू सारे वत पकवन लुख तिमन ऑटो वालन तमो कोर हस्पतालस मज मास्क वर तिमन आए मास्क इशू कर। अत मज शुक्रगुजार पुलिस खास कर अत मज SHO कुलगाम भट्ट साहब पान SP DSP कुलगाम यमो कोर सैसी मार्केटस फिर यमो कर मास्क सारे इस्तेमाल। लुकन अपील कर तुम मास्कन करो इस्तेमाल तिक कोरोना अम सतुच बी लहर अमिच बी इसलिए एहतियात। शुमाली कशीर हंदिस पटनस मज पुलिस तो सिविल इंतजामिया तरफ SOP'जन हज खिलाफ वर्जी करने वालन खिलाफ मुहिम शुरू करने आमज। तत आज मुहिम दौरान हैदराबाद पटनस मज खिलाफ वर्जी करने वालन कईयान लूकन खिलाफ कार्रवाई अमन मज अन्न आमज, यिल जन जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आव ज तिम गसन SOP'जन पे सख्ती सान अमल करें युत जन तिमन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न। आज हम यहाँ पे बलहालन और हैदराबाद में गए, वहाँ पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको नाफिज करने के लिए पुलिस अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेशन हमने वहाँ पे बहुत सारे बैंक्स जो इदारे हैं यहाँ पे जो दुकानें हैं यहाँ पे हमने वहाँ पे मतलब कहीं कहीं जगह पे चालान भी किया, उनको फाइन किया अंडर रेड क्रॉस। तो एक्चुअली हमारा मेन मकसद यही था कि लोगों में अवेयरनेस बांट दे के जो ये कोविड की वेव अभी नहीं आई है तो उसको कैसे बचाया जाए। तो हमने इंश्योर किया कि लोग यहाँ पे मास्क अच्छे से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और बाकी जो सैनिटाइजर एंड ऑल वो यूज़ करें पर्टिकुलरली, ताकि ये जो इन्फेक्शन है इसकी वबा से हम बचें। मींडर पंचस मज ये कोरोना मामले ब्रो कुन इन पत इंतजामिया तरफ एहतियाती बनशी आयद कर आमच तत टेस्टिंग अमल मजीद तेज कर आमच, ये जिम्मेदारों तरफ वन आव मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित इंतजामिया तरफ संजीदा कदम तुलना आमत। ताहम जरूरी लूख कर इंतजामिया अथवास युत जन कोरोना वायरस पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। जावा साइड जो ब्रिज के उस पार मेंढर टाउन में गोलद में ही 4 केस पॉजिटिव आए थे। उसको चलते डी साहब ने जो जावा जो हमारा इलाका है इसको हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। उसके तहत माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जैसे आपको पता है कि वहां पे लोगों की आवाजाही जो बिल्कुल हमने बंद की हुई है, वहां पे जो कंसीना वायर्स हैं और मैजिस्ट्रेट 24/7 बैठे हुए हैं। और मैं लोगों से भी ये एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है उसका पालन भी करें और साथ में अब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है उसका उपयोग अब करना बड़ा जरूरी हो गया है। जैसे आपको पता होगा कि जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसके जो केसेस है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो एक स्ट्रिक्ट आदेश जारी हुआ है वर्दी गवर्नमेंट से भी और हमारे डी साहब वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ ने एक हमें स्ट्रिक्ट हिदायत दी है कि बाजारों में और जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसमें हमें दौरा करना है। पुलिस
की टीमें एक्टिव हैं, मेडिकल की टीमें एक्टिव हैं और हमारा मेंढर भी उसे अछूता नहीं है। तो हम सबको अब एकजुट होके इस ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी सामना करना होगा। बटमालिन स्टैंडस सहित वाबस्त सोमो ड्राइवरों तरफ आज श्रीनगरस मज वाक़ा बीजेपी दफ्तरस ब्रोह कन एहतजाजी मुजाहिर करने आमत यथ दौरान एहतजाजस में शामिल ड्राइवर सख्त नारेबाजी करान। एहतजाजस में शामिल ड्राइवरों तरफ वन आमत योदवे तम मेहनत कर अनचोर जेनन ताहम इंतजामिया तरफ हुक्मनाम जारी करने आमत यम सहुंद रोजगार मुतासर सपून। एहतजाजस में शामिल ड्राइवरों तरफ इंसाफ फराहम करने मांग करना आमत। गवर्नमेंट ने हमें रिहेबिलिटेट किया था बटमालू से मंडी, तो हम चल रहे थे वहां पे, लेकिन उस वक्त उन्होंने बताया था कि साउथ की जो सर्विस है, साउथ पार्ट जो हमारा आ रहा है वो अलग में चलेगा। उसके बाद में हम चल रहे थे, लेकिन हमें रोड के साथ कोई वाबस्ता नहीं था। हम चल रहे थे आराम से, 8 गाड़ियां हमारी चल रही थी। उस वक्त भी पुराने अफसरों ने बोला था कि आप चल सकते हो, लेकिन भाई रोड पे गाड़ियां नहीं लगनी चाहिए। तो उस वक्त से हम अपना रोजी रोटी चला रहे थे। इसके बावजूद क्या हुआ कि इन्होंने बताया कि एसएसपी साहब जो आए हैं नए, उन्होंने बताया कि ये कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट हम ये कह रहे हैं कि आपसे कि नई सी गाड़ियां यहाँ पे नहीं चलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि अगर हमारी गाड़ियां नहीं चलेगी, जो लाइट व्हीकल है, तो हेवी व्हीकल किस तरह से चलेगी मुझे ये बताइए पहले। लेकिन ये रोजी रोटी हमारा भी चल रहा है, हमारे साथ वाबस्ता है। कम से कम 1.5 लाख लोग हमारे साथ वाबस्ता है जो कि भूखमरी के शिकार हो गए हैं। हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ कीजिए। आप पर्टिकुलरली बीजेपी के ऑफिस में इसलिए आए कि हम सेटिस्फाई बीजेपी गवर्नमेंट के साथ नहीं है। बीजेपी जो है वो हमारे साथ सौतेलापन कर रहा है। हम क्लियरली बोल रहे हैं कि बीजेपी ने हमारे साथ सौतेलापन किया। नादर त्राल के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज बिजली निजाम दुरुस्त करनस हवाले कई फिर मुतलिक महकम के जिम्मेदारन जान फराहम करना आई, ताहम आज ताम महकम तरफ कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज बिजली निजाम दुरुस्त करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। यहाँ जो ये बिजली का जो सिस्टम है 1974 में उन्होंने ये इंस्टॉल किया हुआ है, तब से लेकर आज तक कोई रिपेयरमेंट नहीं हुई है। बार बार इस सरमा के दौरान हमें यही प्रॉब्लम होती है कि ये जो तारे हैं गिर जाती है। अक्सर हमेशा खदशा रहता है कि एक कोई न कोई हादसा जरूर होगा यहाँ पर। हमें पता है, हमने आज से तकरीबन 8 साल पहले भी उनसे गुजारिश की है कि यहाँ तार या पोल वगैरह दीजिए इसके लिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम 4-5 डिपार्टमेंटों से गुजारिश की, हमने डीसी साहब के पास भी गए हैं, बैक टू विलेज प्रोग्राम में भी रखा है, कहते हैं हमने रखा है, AEE एक्शन सभी लोगों के पास गए हैं, लेकिन आज तक उससे कुछ नहीं हुआ है। हम बहुत परेशान। यही बस हमारी यही अपील है कि इस मेहरबानी करके इसकी फौरी तौर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें पोल और तार ज्यादा हम नहीं मांगते हैं, बस यही 10-15 पोल इसको ज्यादा से ज्यादा लग जाएंगे और ये तार उसको मेहरबानी करके रिपेयर कीजिए, दो इंस्टॉल कीजिए नहीं, ताकि हम भी आराम से अपनी जिंदगी काट सके। सोन मसल जनाब ये कि अशन तार तो पोल ये टोटल रोजान नादर अर्पल तहसील पत्म लट बैक टू विलेज प्रोग्राम गो नादरस मज तो तम सात लिख तार तो पोल कम 10-15 पोल से लिखमित, ज्यादा लिखमुत कह। तार हुंद मसल तार प्रथ कुन जाए तुम वो पान तह कट प्रथ कुन जाए, यह कालचन तवन वसित दोहल तवन वसित। वो कह नौजवान अगर ये आसो तो खबर कुछ हादस नादरस मज पेश, लिहाजा कर तह कस होतन गिरे होतन अगर तत आसो गाम दजेो। अमुक जिम्मेदार गवर्नमेंट, मेहरबानी कर यह गुजारिश कर तार तो पोल यह वातन फूरी तौर गामस मज AEE सोबस कर गुजारिश, ADC सोबस कर गुजारिश, DC सोबस कर गुजारिश, मेहरबानी तो मेहरबानी यम मसल वन यम कर फूरी तौर जांच नीन अमुक। बेन ूट बाग
ट्रांसफार्मरस नश अत कह सास LT हेको ऑर्डर कर मगर कह सास हेको कर कहें लिहाजा बना स्प्रे कर हुमन बागन त मतलब ूंट बागस कहें अगर स्प्रे करो हेको लगित कह सास लिहाजा कर गुजारिश कर अत लगन पोल 5-6 अमुक तहकीकत कर गवर्नमेंट या AWE सोब। हमजा कॉलोनी त्राल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज नस्ब करना आमद बिजली ट्रांसफार्मर विज खराब सपदन किन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तमे हवाल कई फिर मुतलिक महकम के जिम्मेदारन जान फराहम करना आय ताहम आज ताम लूकन हिंद मुश्किल दूर करने हवाले कह कदम तुलना आमुत मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज दोयम बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन माकूल बिजली फराहम करने हम यहाँ इस वक्त ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं, हमारा ये ट्रांसफार्मर आज से 25 साल पहले यहाँ लगा। उस वक्त के MLA साहब ने ये डोनेट किया था। तब से आज तक यहाँ की आबादी जो है वो कई गुना बढ़ गई है। ये तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के एरिया में एक ट्रांसफार्मर है। एक रात भी नहीं ठहरता। ये हमारी डिमांड है कि इस पूरे एरिया में कम से कम 3 ट्रांसफार्मर लगने चाहिए। ये 2-2.5 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ से एक डाउन स्ट्रीम में एक और अप स्ट्रीम की तरफ एक 3 ट्रांसफार्मर यहाँ आके नया, एक ये रिपेयर करके या नया, और 2 एडिशनल ट्रांसफार्मर यहाँ लगने चाहिए। हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो इतना पुराना हो गया है कि यानी कि बाद में 25 साल से, और तारें जो है 1984 में लगाए हैं और आज तक तारे भी नहीं ठीक। जब एग्जाम साहब पहले आए थे उसने खुद कहा कि मैं तारे ठीक करूं, लेकिन आज तक नहीं हुआ। शाम को लाते हैं ट्रांसफार्मर, सुबह खराब हो जाए। न यहाँ के तारे ठीक है न ट्रांसफार्मर तक आज तक किसी ने नहीं सुना। हमारी यही मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट से कि हमारी दाद सुने, हमारी फरियाद सुने। हम मजलूम हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा। हमें बिजली का ये नया ट्रांसफार्मर 2-3 दे दे। शुमाली हंदिस करना टंगडार इलाकस मज कयम हस्पतालन मज काम करने वाले मुलाजिमों तरफ वन आमुद यदि तम पत्मो कय्या वरियो पे इलाकन मज पन फरज सुखसान अंजाम दिवान ताहम महकम तरफ ट्रांसफर पॉलिसी तरतीब दिन आम यम किन यम मुलाजिम जहनी कोफ्त शिकार सपद। महकमे सेहत सत वाबस्त मुलाजिमों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज इलाकन मज काम करने वाले मुलाजिमन हवाले गि वाजह ट्रांसफर पॉलिसी तरतीब दिन yin युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। देखिए, आज जो हमने रखा था साइलेंट प्रोटेस्ट इसीलिए कि हम बॉर्डर एरिया में काम कर रहे हैं पिछले 12-13 साल से। तो हम ये गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं, जो हमारी पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली हम यही बोल रहे हैं कि रोटेशन बेस पे टंगडार पे हमें मतलब ये ना होनी चाहिए ट्रांसफर। उसकी ये गर्ज है कि उसमें क्या है कि जब भी कोई NHM में नई पोस्टिंग्स है तो वो भी यहाँ आते और हमें भी मौका आता कि घर के आसपास नियर बाई एरियाज में सर्व करना। वो 2-2 साल का रोटेशन अगर होता या 1.5 साल का रोटेशन होता तो हर एक चाहता कि नहीं मैं टंगडार जाऊं। मगर अब बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पे जो ही आया, जो भी बंदा यहाँ आता है, चाहे वो डॉक्टर्स के साइड से है या पैरामेडिकल स्टाफ के साइड से है, तो अगर उनको अब कंफर्म साइड से भी पोस्टिंग होती है या NHM साइड से भी, अब कोई NHM साइड से वाला भी ज्वाइन नहीं करते। ये वो उतना एरिया नहीं है यहाँ पे वैसे हमें अकोमोडेशन मिले जहाँ पे हम बैठ सके, और जहाँ पे वैसा कुछ ये है हीटिंग सिस्टम का कोई मसला हो। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने वो फैसिलिटी रखी होती, क्वार्टर्स रखे होते डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, तो तभी लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट से आ जाते। नो डाउट उनका वो रेंट अलाउंस कट जाता, लेकिन फैसिलिटी तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें जो भी बेचारे रहते हैं प्राइवेट रूम्स में रहते हैं और वहाँ पे उनको तंगी होती है, पानी नहीं है, विंटर में सरमा में इतनी दिक्कत होती है, 3-4 महीने बड़ी परेशानी हो जाती है। इसलिए हम गवर्नमेंट से यही डिमांड करें कि तब तक ये स्टेशन अच्छे से नहीं सर्वाइवल इसका होगा, कोई भी बॉर्डर एरिया का, चाहे वो गुरेज हो, मच्छल हो, केरन हो, करना हो, तो यहाँ पे जब तक ये मुलाजिम को अच्छे से फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा और रोटेशन बेसिस पे मुलाजिम को यहाँ से ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ मुश्किल है आना। तो हमने बहुत बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि ट्रांसफर करें, वो 2-2 साल रखें। हम नहीं बोल रहे कि हमें 1 महीने के लिए रखो, 2 साल रखो, 3 साल रखो, लेकिन कोई तो लाहे अमल हो, कोई तो ऐसा पॉलिसी हो जिसमें हर किसी को रोटेशन पे लाया जाए। मैं यहाँ पे एक्सटेंशन एजुकेटर 5 साल से हूँ, इसी तरह ये हमारे बाकी भाई जो हैं 10 साल से हैं, 13 साल से हैं, 15 साल से हैं, और ये हर जो भी यहाँ आता है फंस जाता है। और
हमें उस वक्त बोला था 2 साल देने, उसके बाद आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। इनको भी बोला गया था, हर किसी को यही बोला जाता है जब वहां से ऑर्डर आता है, अपॉइंटमेंट होती है, 2 साल टंगडार जाओ, उसके बाद आपकी ट्रांसफर, लेकिन वो कभी नहीं होता है। मैं यहाँ मच्चिल से आया हूँ, एक जड़गली होगी, एक साधना होगी, इसी तरह एक कोई जम्मू का है, कोई कपारा के और किसी, कोई श्रीनगर का है, तो हर कोई इंसान जो भी करता है यहाँ नौकरी करता है, अपने ये एम्प्लॉयमेंट जो है घर वालों के लिए होती है, उनके लिए कुछ कर पाए। अब हमारा ये हाल है कि साधना बंद है तो कोई घर नहीं जा सकता, घर में कोई भी इंसिडेंट। तो नाजरीन इस सपुद कशुर खबरनामा अंत 7 बजे सपद तो मुलाकात, फिलहाल दी इजाजत, खुदा सवाल।